Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, verse number 19. Okay, right? हाँ. अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप. Translation तो and ये purport. हुआ था शायद This is done? 19 हुआ था शायद। नहीं नहीं, 19 नहीं होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहले पिछला वर्ष किया था इससे। एक मिनट। 19 से करना है हम लोगों को। ठीक है, पढ़ेंगे तो। एनीवेज, भागवतम रिपीट भी होगा तो अच्छा ही है। Translation. O king, Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. Purport. Pure devotees of the Lord are all Buddhas, or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumar, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadev, Goswami, Bali Maharaj, and Yamaraj. Bhishmadev, although one of them, has mentioned only three important names of the 12 who know the glories of the Lord. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhav, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understandings of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotee, and that is another feature of the glories of the Lord. Shukdev Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord. Shukadev Goswami and Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotee into material trouble means delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 100% attracted towards the transcendental loving service of the Lord. Thus the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee are different from the tribulations resulting from vicious action. All these glories of the Lord are specially known to the great Mahajans like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumar, and Bhishma, as mentioned above, and one is able to grasp it by their grace. तो यहाँ भीष्म पितामह बता रहे हैं कि नारद, भगवान शिव और सेज, जो नारद को कहते हैं डेमिगॉड्स के बीच में जो सेज है, देवताओं के मध्य रहते हैं, कपिल, जो भगवान के स्वयं अवतार है, वे सभी भगवान को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधे उनसे संपर्क के माध्यम से उनको, उनकी जो वास्तविक गुण है उनको जानते हैं। तो यहाँ 12 महाजनों के नाम जो भागवतम में आते हैं वो बताए गए हैं। ब्रह्मा, नारद, शिवा, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज एंड यमराज। ये 12 महाजन हैं। ठीक है, ये 12 महाजन, महाजन मतलब महान जन। महान जन का अर्थ यहाँ पर है कि जो भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवत तत्व को समझते हैं, भगवान के गुणों को समझते हैं, विशेषताओं को समझते हैं, भगवान के प्रेम को समझते हैं, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, यानी भगवान के जो क्रियाकलाप है जो वास्तव में उनको समझते हैं, उनको महाजन कहा गया है।
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारी परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ये जो है सिम्टम्स के रूप में भगवान के साथ संपर्क जैसे ही होता है, तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं। इनको अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। ये अष्ट सात्विक विकार कभी कभी इसकी झलक आपको मिल जाती होगी। कभी कभी जब आप कोई कीर्तन सुनते हैं, किसी कीर्तन में भाग लेते हैं, तो अंदर से बहुत रोमांच होने लगता है। आपको कोई कभी कभी आप कोई कथा सुनते हैं, तो आपके अंदर रोमांच होने लगता है। आपके हाथ पैरों के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, हमारा मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया ये सुन के। मतलब दिस इज सो एक्साइटिंग फॉर यू। एंड ये एक्साइटमेंट का भाव हम लोग थोड़ा अनुभव करते हैं। हम क्या कब अनुभव करते हैं कि कब बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, एंड वी आर सो इमर्स्ड इन दैट कीर्तन, एंड वी आर थिंकिंग, oh how nice this kirtan is. And then we feel that strange feeling of hair standing on end. And sometimes you will feel automatically tears coming to your eyes, hearing the stories of Bhagavatam, hearing how much a devotee loved Krishna, or how much love Krishna loved the devotee. Sometimes it happens with all of us. But the problem is, this does not remain permanently with us. वो हमारे साथ ये स्थायी भाव नहीं है। हमारा क्या है भाव? आता है, फिर चला जाता है। तुरंत हमें एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आ जाती है। और दूसरा ये है कि जब जैसे आप भगवान की कथा सुनते हैं तो आंसू आ जाते हैं, फिर कभी खुशी कभी गम मूवी देखते हैं तो भी आंसू आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाव का जो कारण है वो अभी शुद्ध नहीं है। भाव का कारण हमारा मेटीरियल इमोशंस है। भौतिक भाव के कारण हमारे मन में हमारे ये सिम्टम्स प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जब भगवान का जो शुद्ध भक्त हो जाता है, उसे मेटीरियल इमोशंस से प्रभाव नहीं पड़ता। उसको स्पिरिचुअल इमोशंस के कारण आते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल इमोशंस के जो सिम्टम्स हैं वो परमानेंट होते हैं। अब आप कहेंगे, प्रभु जी, तो क्या प्रभुपाद हमेशा रोते ही रहते थे, या प्योर डिवोटी हमेशा रोते ही रहते हैं? तो they actually suppress their emotions, and it is said in our parampara that we should actually suppress our these symptoms of emotions, जो एक्सटर्नल सिम्टम्स है। तो आप भागवतम में ये अष्ट सात्विक विकार के बाद बारे में अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे। हमारे आचार्य हैं जैसे हरिदास ठाकुर हैं। एक बार हरिदास ठाकुर एक सपेरा था, वो कथा सुना रहा था भगवान की एक बड़े धनी जमींदार के घर में। मैं हरिदास ठाकुर भी वहां सुन रहे थे बैठ के। एंड जैसे ही हरिदास ठाकुर ने वो कथा सुनी, तो हरिदास ठाकुर इतना रोमांचित हो गए कि वो क्रंदन करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, नाचने लगे, जमीन पे लोटने लगे। यही सब सिम्टम्स है, जमीन पे लोटने लगे। तो समहाउ ही केम इन कॉन्शियसनेस कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको समझ में आया। तो वो फिर चुपचाप बैठ गए। एंड सपेरा भी उनको बहुत रेस्पेक्ट किया, उनके पैर छुआ। सपेरा वो समझ गया कि ये जो है एक शुद्ध भक्त के सिम्टम्स हैं। और थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां पर बैठा था, ब्राह्मण बैठा था, उसे लगा कि बड़ा रेस्पेक्ट मिलता है ये सब काम करने से, और मुझे भी थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए। तो वो भी उठ के अचानक चिल्लाने लगा और नाचने लगा, लौटने लगा। तो सपेरे ने देखा, सपेरे ने एक डंडा उठाया और उसको बहुत पीटा, भाग यहाँ से। तो सपेरे ने कहा ये जो था ये नाटक कर रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रू सिम्टम्स हैं। सो दिस वी अंडरस्टैंड कि प्योर डिवोटी के जो सिम्टम है उसको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं होते वो सब। वो वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करता है। और जैसे ही वो प्रारंभ होते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं उसको दबा देना चाहिए। आपको कभी भी समाज के भीतर ये शो नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर एक्सप्रेस अवर ecstasies in front of the public. So these devotees, pure devotees, though they have permanent these symptoms, but they suppress it. They don't express it in front of the public. They may express it very to very close confidential devotees of the Lord, जो उनके साथ के बहुत क्लोज होंगे, उनके सामने बड़े भले ही प्रकट कर रहे, बट जनरली उनसे भी दबा के रखते हैं। बहुत पर्सनल है ये, अपना किवाड़ बंद करके और कमरे के अंदर ही इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो है, दीज आर
वीपिंग बॉडी। आप देखेंगे हमारे मम्मी लोग जो हैं, हमारी मम्मी जो मूवी देखती है तो बहुत आंसू आते हैं, फिर कथा सुनती है तो बहुत आंसू आते हैं, कीर्तन सुनती है तो बहुत आंसू आते हैं। तो सब में हाथ से अगर आंसू आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में भक्ति की भावना है। ये है हमारे जो एक्सटर्नल, क्योंकि इमोशंस तो वही है। जैसे करुणा, अगर आपने मूवी में देख ली कहीं करुणा रस चल रहा है तो आपके आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आप करुणा रस से जल्दी प्रभावित होते हैं। भावुक लोगों के आंसू आ ही जाते हैं, जो बहुत भावुक होते हैं वो कुछ देख लेते हैं कि किसी मूवी में किसी माँ को किसी ने कोई कितना प्रेम करता है और माँ कितना प्रेम करती है, कुछ जैसा दिखा दिया, अरे तो वो रोने लगेगा। देश देश के लिए कितना प्रेम करता है कोई, तो वो रोने लगेगा। तो वो जो है, इट्स जस्ट यू कैन से it's just material emotion. And these emotions which we get genuinely during kirtans katha, these are just like advertisement of spiritual world. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एडवर्टाइजमेंट है कि आप जब वहां पहुंचेंगे तब आपको क्या आनंद आने वाला है। कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में द हाईएस्ट सिम्टम ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज द द हाइट दिस द सेक्स प्लेजर जो है, द हाईएस्ट द पर्सन गेट्स हाईएस्ट एक्सटेसी इन सेक्स प्लेजर इन मटेरियल वर्ल्ड। That's why this material world is so binding. It is called Methunya Agar. This is the place where the person enjoys sex pleasure. This is Methunya Agar. यहाँ वहां पर सबसे ज्यादा सिम्टम फील होते हैं वहां पर। एवरीबडी, दैट्स व्हाई एवरीबडी इज अटैच्ड टू दैट एक्टिविटी। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, without any material tinge, without any bodily sense gratification, you are always in extreme happiness. You're always experiencing the highest level of happiness. That is spiritual world. That's why you can understand this is actually the एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने ऐसे कहा था। आपको कैसे पता? प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद अलग अलग समय पर इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर देते थे। तो प्रभुपाद ने पूछा अपने भक्तों से, तो बताओ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड और हाउ डू यू बिलीव देर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? So one time Prabhupada said, devotees were saying, no, Prabhupada, because Krishna has said that. Prabhupada said, no, because you can feel the ecstasy. एंड अनदर टाइम डिवोटीज को पता था अच्छा यही जवाब देना है, तो प्रभुपाद ने फिर पूछा, हाउ डू यू नो देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? डिवोटी सेड, बिकॉज वी कैन फील एक्सटेसी। प्रभुपाद सेड, नो, बिकॉज कृष्णा हैज सेड दिस। सो प्रभुपाद ने अलग अलग टाइम में अलग अलग उत्तर दिया, बट ऑल आर प्योर डिवोटीज से उत्तर हमेशा सारे सही हैं। सो दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो सिम्टम्स जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन इसको इमिटेट नहीं करना है। हमारे आचार्यों ने इमिटेशन के लिए बहुत निंदा की है कि जो इमिटेशन करता है वो, क्योंकि ऐसे इमिटेशन करके लोगों ने अलग अलग संप्रदाय प्रारंभ कर दिए। उनको कहते हैं सहजिया, सहज्य संप्रदाय। तो वो नकल करते हैं इन इमोशंस की। जैसे आपने देखा गोपी भाव, तो एक कोई बड़े अधिकारी थे, वो गोपी बन गए और वो लड़की के कपड़े पहन के, गोपी के ड्रेस पहन के, श्रृंगार करके नाचने लगे सब जगह, इमोशन। बट प्योर डिवोटी के मन में अगर गोपी भाव है तो वो कभी एक्सटर्नली जनरली वो ऐसा सब नहीं करेगा। और उसके जो बाकी चीजों, बाकी क्रियाकलापों से आपको समझ में आ जाएगा। कोई वास्तव में अगर इस भाव में कर रहा है तो उसको फिर कभी मतलब समाधि की अवस्था है ये। समाधि की अवस्था से फिर व्यक्ति बाहर ऐसे आसानी से आता नहीं है कि वो तुरंत ही फिर मटेरियल जो है मेटेरियलिस्टिक चीजें करने लगे, है ना, मेटेरियलिस्टिक कार्य करने लगे। तो हमारे आचार्य बहुत सावधानी बरतने के लिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये सब चीजें आपको तुरंत ही पथ से, भक्ति के मार्ग से भ्रष्ट करके दूसरी तरफ भी ले जा सकती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये भक्ति के पाथ से भ्रष्ट भी कर सकती है, क्योंकि आप क्या फोकस कर रहे हो? आपका फोकस बहुत लोअर लेवल का हो गया, इमिटेशन का हो गया है एक्चुअली। इमिटेशन इज नथिंग बट इट इज लाइक चीटिंग। So these people cheat, those who cheat on the path of devotion. Why do they do this? Because they will get respect. करेक्ट?
क्योंकि लोगों को समझ आ रही है, ये तो और कथा सुन के तो पागल हो जाता है, जमीन पे लौटने लगता है, वो नाचने लगता है। मैंने देखा है, भक्त लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे प्रभु जी वो तो ना प्रभु, उनको देखिए, ये जो भक्त हैं, कोई एक भक्त बता रहे थे, वो किसी और व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, और ये व्यक्ति एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं था उसके बारे में, लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भक्त अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रभु जी वो तो नाचता है सब जगह, वो तो उसको वो अकेले ही रोड पे नाचता रहता है, कीर्तन करता रहता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सिम्टम गलत है या वो, बट ये रेस्पेक्ट करते हैं लोग। तो ये रेस्पेक्ट सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को कोई किस मोटिवेशन से ये कर रहा है, मटेरियल मोटिवेशन से अगर ये सब चीजें कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो चीटिंग है। भक्ति में आप चीटिंग, भक्ति में आप जेन्युइन इमोशन से एक्सप्रेस करेंगे, आप इमिटेशन करके नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी शुड नेवर इमिटेट प्योर डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद, बहुत बार प्रभुपाद जो है एक्सटेसी में चले जाते थे। प्रभुपाद एक बार जय राधा माधव गा रहे थे, तो जय राधा माधव गाते गाते प्रभुपाद भाव की अवस्था में चले गए, और उनका गला चोक हो गया, गला रुंध गया, कहते हैं ना, गला रुंधने लगा। क्यों रुंधने लगा? क्योंकि इमोशंस आ गए। तो वो वहीं शांत हो गए, 10 मिनट तक शांत रहे, कोई कुछ नहीं बोला, सारी क्लास शांत हो गई। तो प्रभुपाद भाव की अवस्था में चले गए जय राधा माधव के टाइम। तब एक डिवोटी ने फिर हरे कृष्ण गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर सब लोग गाने लगे। बाद में किसी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। देन ही वेंट टू प्रभुपाद, प्रभुपाद दिस हैपेंड, डिड आई डू रॉन्ग? Prabhupada said, no, you did right. No. And when Prabhupada came out in external consciousness after that, many times devotees saw that Prabhupada's eyes, tears coming from his eyes. Many times Prabhupada would explain uh, his deep internal emotions, and Prabhupada would choke and start crying. But these things would not happen generally in public. Okay. So तो द मेन पॉइंट हियर इज हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल ये जो सिम्टम्स हैं, वो आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, आना अच्छा है। जब चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी ने महामंत्र जप करने के लिए दिया, तो उन्होंने आके आके यही पूछा कि क्या मंत्र दे दिया आपने गुरुदेव, कि मैं तो पागल हो गया हूं, मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, गला रुंध जा रहा है, हंस रहा हूं, हंसती रोदती गायती नृत्यति। ये होता है, हंसने हंसता है तो हंसता ही जाता है, रोता है तो रोता ही जाता है, गाने लगता है तो गाता ही रहता है, नाचने लगता है पागलों की तरह, जमीन पे लौटने लगता है। और चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में थे, तो वो तो कई फीट ऊपर जंप कर जाते थे, और धाड़ से नीचे गिरते थे, और उनके शरीर के लिम्स अलग हो जाते थे आपस में, मतलब जो जॉइंट्स थे ना, जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते थे सब, एक्सटेंड हो जाती थी उनकी बॉडी, एकदम ऐसी गोल एक लंप जैसी बन जाती थी। ये राधा रानी के भाव के कारण ये होता था। ये मतलब ये साधारण मनुष्य में इस टाइप का नहीं आएगा कभी भाव, वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर होता था। तो डिवोटीज डरे जाते थे, क्या हो, इनका तो हड्डी वड्डी टूट गई, लग रहा है फ्रैक्चर हो गया। बट चैतन्य महाप्रभु वॉज इन दैट भाव, एक्चुअली ही एक्सप्रेस्ड द हाइएस्ट सिम्टम्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, that no jiva can express that, only Radha Rani can express. Radha Rani has those symptoms, that's why. So Radha Rani, when she is in too deep memory of Krishna, that time she starts talking to uh, this bumblebee. एक बम्बल भी आती है, तो वो उससे बात करने लगती है। जब उद्धव आते हैं तो बम्बल बी से बात करती है, तो वो क्या कहती है कि तुम जरूर उनकी मैसेंजर हो, कृष्ण की मैसेंजर हो। फिर वो बहुत डांटती है। तो राधा रानी के ये सिम्टम्स होते हैं, भागवतम में आता है सब एक्चुअली। ये पर्टिकुलर गोपी, राधा रानी का नाम नहीं है भागवतम में, पर्टिकुलर गोपी का नाम है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी के शुक है, तोते हैं। अगर वो उनका नाम लेते तो वो खुद एक्सटेसी में चले जाते, बोल ही नहीं पाते भागवतम, इसलिए वो कहीं नाम नहीं लेते राधा रानी का। सो आप जो भगवान है वो अपने भक्तों को, अभी ये जो है सिम्टम्स कैसे भगवान भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि भगवान क्या है ना, डीप अटैचमेंट का ये रीजन है। जब भगवान देखते हैं डीप अटैचमेंट है मेरे भक्त को, तो भगवान भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस अटैचमेंट को। So he puts sometimes his devotees. So how Krishna makes his devotees pure devotees?
कृष्णा पुट समटाइम्स देम इन ट्रबल। तो क्या होता है, मुश्किल में डाल दिया तो उसके पास फिर कोई और शरण नहीं बचती है, वो केवल भगवान की शरण लेता है, पूर्ण शरणागति हो जाता है। और उस सारे जितने भी उसके ट्रांसेंडेंटल चीजें हैं, तो जो भी उसके मटेरियल चीजें हैं वो प्यूरिफाई हो जाती हैं और ट्रांसेंडेंटल भाव में आ जाता है भगवान के साथ। यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनय। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, यस्या हम अनुग्रहणामि, जिस पर अनुग्रह करता हूं, हरिष्ये उसका धन, तद धनम शनय उसका धन धीरे धीरे चुरा लेता हूं, भगवान ऐसे कहते हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका धन नहीं चुराएंगे भगवान। जब तक भगवान ये नहीं समझे कि ये बहुत प्रेम कर कर रहा है मुझे, तो थोड़ा बहुत जो ट्रेस बचा है उसको निकालने के लिए भगवान, शिल प्रभुपाद को जैसे उन्होंने, उनका बिजनेस पूरा समाप्त हो गया, तब उनको समझ में आया कि अब उन्होंने उन्होंने तब ये श्लोक पढ़ा भागवतम का, जैसे हम, अरे कृष्ण वॉन्ट्स मी टू बिकम अ सन्यासी, कृष्ण वॉन्ट्स मी टू बिकम अ preacher, and he took sannyas and he became a preacher because many times he attempted बिजनेस अगेन, किसी ने चीटिंग कर ली, आग लग गई, ये हो गया, चोरी हो गई, वो क्या क्या हो गया। तो बहुत प्रयास किए, उनकी फार्मेसी बहुत हिट थी, बहुत फेमस थी, मतलब उस समय जब किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, शिल प्रभुपाद के पास एम्बेसडर थी 1960s वगैरह में। तो प्रभुपाद उस समय से एम्बेसडर में चलते, तो जितना उनके पास पैसा था, एंड उनके कुंडली में भी किसी ने बताया, लिखा था एक एस्ट्रोलॉजर ने कि ही विल बिकम द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन दिस कंट्री, और he'll become a sannyasi who will establish 108 temples and will cross the ocean and make devotees in foreign land and establish 108 temples। ऐसे प्रभुपाद के लिए ज्योतिषी ने बताया था। सो दैट्स हाउ प्रभुपाद एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड। तो प्रभुपाद के अपने उन्होंने उदाहरण से कहा, भगवान कब अपने भक्तों को मुश्किल में डालते हैं, जब बहुत अनुग्रह करने वाले होते हैं। एंड दिस एक्चुअली जो भी मटेरियल ट्रेस छोटी थोड़ी बहुत बची होती है, सबसे निकल जाती है। प्रभु जी, यस। प्रभु जी, you are saying that your tribulation come to the devotee for the purification. यस। Then any devotee suffering problem or tribulation for the purification. इट इज एक्चुअली अप टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवोटी। जो आप जैसे उसको फील करना चाहते हैं उस पर ही डिपेंड करता है। इसलिए जिससे जैसे भगवान, जैसे जैसे आपकी भक्ति भाव आपका बढ़ेगा, आपकी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी, आपका भाव बढ़ता जाएगा और प्रेम भी बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगती हैं। तो जितना आप कंट्रोल भगवान को देते हैं, उतना भगवान कंट्रोल करते हैं। जितना आप कंट्रोल भगवान को देते हैं, तो मैंने जैसे बताया था, एक बार मैं बता रहा था कि भगवान भक्त के जीवन में डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं, डायरेक्ट उनका कंट्रोल है। फिर माया, कर्म, ये सब सिद्धांत काम नहीं करते। तो इसीलिए भक्त के जीवन में एक्चुअली जो नया नया आया है, जो अभी हम जैसे लोग हैं, हम नियोफाइट हैं, सपोज नियोफाइट का मतलब है ऑलवेज फाइटिंग। जो बोला तो बहुत लोअर लेवल, भगवान ने इतना परेशान, किसी को कोई परेशानी नहीं दे। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं जनरली, जो या शुद्ध थोड़ा सा रह गया है, जिनका सरेंडर भगवान चाहते हैं और सरेंडर कर दे, तो भगवान उसको ट्रिबुलेशन देते हैं, उसको परेशानी देते हैं, ताकि वो जो थोड़ा बहुत मेटीरियल शरण ले रहा था वो भी छोड़ देगा, फिर पूरी तरह भगवान की शरणागति ले लेगा। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अगर हम सोचेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमेशा हमें सोचना अच्छा है। दिस शुड बी द कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटी। वी शुड ऑलवेज थिंक, कृष्णा इज ट्राइंग टू गिव मी व्हाट लेसन, कृष्णा इज ट्राइंग टू गिव मी इन दिस सिचुएशन। वी शुड ऑलवेज थिंक लाइक दैट। ये मेरे जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आई, तो यहां से मैं क्या सीख देना चाहते हैं भगवान मुझे। सो दिस इज 100% ट्रू। जिस दिन आपने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया, तुरंत ही आपने कृष्ण की शरण की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। और भगवान देखने लगे, अच्छा ये है असित, ठीक है, ये अभी मेरी कर रहा है मेरी साधना। तो भगवान देखते हैं मेरी साधना कर रहा है, तो भगवान उसी दिन से आप पर नजर रखे हुए हैं। और भगवान फिर कहेंगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपको थोड़ा बहुत कभी वो देंगे। आपको ऐसा नहीं है कि केवल गम गम देते रहेंगे, कि परेशानियां देते रहेंगे, भगवान बहुत सारे आनंद देंगे।
आनंद देंगे तो आप और अटैच हो जाएंगे। फिर भगवान अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत बचेगा तो भगवान थोड़ा परेशानी देंगे, तब आपको याद आएगा। कभी कभी डिवोटी ना थोड़ा सा कैलस हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, और अपनी शक्ति पे कोई भरोसा करता, थोड़ा बहुत ट्रेस रहता है, तो भगवान उसको थोड़ी सी मुश्किल दे देते, तब उसे याद आता, अरे ये मैं अपनी उसमें सोच रहा था कि मेरी शक्ति से होगा सब कुछ ठीक, मैं भक्ति अपनी शक्ति से कर रहा हूं। तभी भगवान थोड़ा सा वो दिया और उसकी भक्ति इधर उधर हुई, उसको ध्यान आता, अरे भगवान की शरण लेनी चाहिए, मैं तो समझ रहा था कि मेरी वजह से सब कुछ कर रहा हूं मैं। तो दिस इज कृष्णाज प्लान, एंड कृष्णा हैज प्लान, सेपरेट प्लान फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड दिस आवर स्टोरी विल बी entirely different from any other devotee's story. Everybody's story will be a unique story. तो कृष्णा मेक्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद डिवोटी, सो ही विल थोड़ा सा ढील छोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, थोड़ा सा ढील छोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे। भगवान ऐसे ऐसे कर करके खींच के लेके जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमें भगवान, आप 100% श्योर रहिए, जिस दिन से आपने हरे कृष्ण महामंत्र जब प्रारंभ किया है, तब उस दिन से भगवान आपको डायरेक्टली देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे उसको अपने पास लेके आऊं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान बुद्धि योग अपने आप देते हैं। नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उसका जो है अज्ञान समाप्त होता है, ज्ञान का दीपक उसके हृदय में जलाते हैं, भगवान ही जलाते हैं वो दीपक। आपको अपने आप ही रास्ता दिखने लगेगा कि हाँ मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं। आप अपने आप ही, आपका जो जो अंतरात्मा है या आपकी जो परमेश्वर है आपके हृदय में ना, परमात्मा, वो परमात्मा आपको डायरेक्शन देने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। जब आप मेटेरियल वर्ल्ड में थे, भक्त नहीं बने थे, तो पता नहीं रहता था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। अभी आप अंदर से आपको परमात्मा की आवाज बहुत लाउडली सुनाई देगी कि ये गलत कर रहे हो असित, ये गलत कर रहे हो, तो तुरंत ही आप समझेंगे नहीं ये नहीं करना है मुझे। जैसे ही आपके मन में कोई लस्टी थॉट आया किसी स्त्री को देख के, तुरंत आपके मन में आएगा, अरे ये कैसे हो गया, ये तुरंत, ये कौन कर रहा है, हु इज गिविंग यू दैट कॉन्शियसनेस, दैट इज परमात्मा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सरेंडर टू परमात्मा, यू आर ट्राइंग टू सरेंडर टू कृष्णा। तो कृष्ण परमात्मा इज बिकमिंग मोर एक्टिव, अभी आपको सुनाई देती है उनकी आवाज। ओके प्रभु, थोड़ा लंबा हो गया। यस ब्रो। Shall we end it? हाँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।